हेलो गाइस। आज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर इसको डिस्कस करते हैं एंड द टॉपिक इज इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एक प्रोजेक्ट उसको एवेल्युएट करने के जो मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर, वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। आप जिस तरीके से आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता है कि प्रोजेक्ट का नंबर होता है वन टाइम, प्रोजेक्ट का मतलब होता है वन टाइम एक्टिविटी। यहाँ पर भी एक, जब भी आपको नया कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं जब आपको नई कोई मशीन एक्वायर करते हैं, जब आप नया कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट ही कहलाते हैं ऑब्वियसली। अब हम उसको देखते हैं ज़रा कि ये किस तरीके से आ, इसका प्रैक्टिकल स्टेटस किस तरीके से हमारे पास निकल के सामने आएगा। It's a small question which says that Liberty Airways is considering an investment of 800,000 in tickets purchasing kiosks at selected airport. The kiosks, which include hardware and software, have an expected life of 4 years. Just to make us questions shorter, 4 years. With the help of this kiosks, we believe that extra ticket sales are expected to be 60,000 per year at a discounted price of $40 per ticket. So this is the revenue. अब इसमें जो एक्सपेंसेस है वो कौन कौन से हैं? फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, इसका मतलब इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। Excluding depreciation are $400,000 and the variable cost are $26 per ticket. You all know that variable cost is a cost which varies as the level of production varies. Okay, level of activity के साथ साथ variable cost change होती है, whereas fixed cost is a cost which has no relationship with the level of activity. यहाँ पे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि 400,000 will remain fixed whereas variable cost is $26 per tickets. It means how many tickets we are going to sell, the variable cost will ultimately increase or decrease. The kiosk will be depreciated over 4 years life using a straight line method with a zero salvage value. It's mean after 4 years, the market value of these kiosks will be zero. The one-time commitment of working capital is expected to be 1/12 of annual sales dollar. वर्किंग कैपिटल के बारे में हमें उम्मीद है कि तकरीबन 1/12 एनुअल सेल्स जितनी है उनका 1/12 हिस्सा हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा। After tax cost of capital is 15%, which is also known as MARR, minimum attractive rate of return, and companies pays income tax at the rate of 34%. Okay. Now this question targets two major methodologies. Number one methodology is known as net present value, which is also known as present worth. So the question asks that what is the after tax present worth of this proposed investment? Should the investment be made? First of all, you have to suggest that investment should be made or not, and second, compute IRR as well, internal rate of return. Okay, if I simply look at the solution, then such type of problem has two major parts. Number one, we need to see that how much investment will be required if we start the project, and number two is what are the cash inflows, expected cash inflows from this proposed investment. So first of all, if I look at the investment required, which means cash outflow. So first of all, Liberty Airways have to purchase kiosks जिसकी प्राइस $800,000 है, और उसके बाद उसे वर्किंग कैपिटल को कमिट करना पड़ेगा 2 लाख रुपए के लेवल पे 4 साल के लिए। ये 2 लाख रुपए का लेवल बेसिकली कहाँ से आया है? ये 2 लाख रुपए का जो लेवल है, ये बड़ा सिंपली हमारे पास जो ड्राइव हुआ है, वो आपको चूंकि याद होगा कि मैंने कहा था रेवेन्यू का 1/12। तो ये जो रेवेन्यू है आपका, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 से। जब मैंने इसको 1/12 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 200,000 की फिगर आ गई। ओके, इसके मुकाबले में इस प्रोजेक्ट, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले हमें एडिशनल रेवेन्यू हासिल होगा कितनी अमाउंट का? $40 पर टिकट, और कितने टिकट हर साल बेचेंगे? 60,000। यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये अज्यूम किया गया है कि ये जो टिकट्स हैं ये हर साल चेंज नहीं होंगे। सिमिलरली, जितना
टिकट्स यहाँ बिकेंगे उसी के मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय $26 पर टिकट वेरिएबल कॉस्ट आ गई। दिस इज द फिगर एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट विच इज अगेन फिक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी $400,000। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं अगर आगे इसकी चलूँ तो बड़ा सिंपल, आप अगर पिछले सवाल में देखें कि 2.4 मिलियन मेरा रेवेन्यू था, तो हर साल ये मेरा रेवेन्यू होता जाएगा विच इज 2.4 मिलियन। और ये ज़ाहिर कहाँ से आया? 60,000 मल्टीप्लाई 40। वेरिएबल कॉस्ट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 24। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स। अब चूंकि इस फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं थी, इसके लिए मैंने डेप्रिसिएशन को सेपरेट मालूम किया। अब डेप्रिसिएशन को कैसे मालूम किया? इट्स अगेन वेरी वेरी सिंपल कि जाहिर सी बात है, आपका जो कियोस्क है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी परचेज प्राइस है 8 लाख रुपए या 8 लाख डॉलर, सॉरी, और इसकी जो सैलरीज वैल्यू है दैट इज जीरो। इट्स मीन माइनस जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज 4। तो यहाँ से आपके पास डेप्रिसिएशन चारों सालों की आ गई 2-2 लाख रुपए, और जाहिर है चूंकि 8 लाख रुपए का, तो 8 लाख रुपए की हो गई, तो सैलरी वैल्यू जीरो है जो कि हमें पता है। नेट प्रॉफिट जाहिर है कैसे निकाला मैंने? रेवेन्यू माइनस दीज थ्री कॉस्ट। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया विच इज 0.24 मिलियन या $2,40,000। ओके, टैक्स रेट जो कि सवाल में मुझे 34% दिया हुआ है, तो 100% में से 34% का टैक्स निकाल दें तो रिमेनिंग कितना बच जाता है आपके पास? 64%। आपके पास, सॉरी, 66% आपके पास फिगर बच जाती है। तो मैंने डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करके जो अगली फिगर निकाली दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, नाउ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहां तक मेरे पास सिचुएशन बड़ी ये क्लियर सी हो गई है। अभी हम बात कर रहे थे नेट प्रॉफिट मार्जिन की, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन की वर्किंग आपको शो कर दी है कि किस तरीके से निकला है। नेट प्रॉफिट मेरे पास आ गया आफ्टर टैक्स 158,400। अब यहाँ पे एक बड़ा मेजर शिफ्ट है जो कि अक्सर जहाँ पे अक्सर हमारे से मिस्टेक होती है इस किस्म के सवालों को सॉल्व करने में, we have to move from net profit to next figure which is called cash flow after tax. Basically here we are interested in not in accounting profit, because accounting profit is a based on accrual accounting, जिसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि असल में हमें किसी को पे नहीं करने होते, लेकिन उसका हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। Those are known as non cash items या non cash expenses। इस सवाल के अंदर एक ऐसा एक्सपेंस मौजूद है which is depreciation expense। इट्स मीन आप अगर गौर करें तो मैंने जब टिकट बेचे इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसको ये पैसे आए, ये उसको एक्सपेंस पे करना पड़ा, ये एक्सपेंस भी उसको पे करना पड़ा, लेकिन ये एक्सपेंस उसको कहीं पे नहीं करना पड़ा, लेकिन इस एक्सपेंस की वजह से उसको टैक्स में फायदा हुआ है, लेकिन ये एक्सपेंस पे नहीं किया। इसका मतलब हुआ क्या है? असल में कंपनी को टैक्स देने के बाद एक तो ये पैसे बचे हैं, प्लस ये पैसे भी कंपनी ने किसी को नहीं दिए। इस तरीके से मैंने जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाला है वो सिंपली मैंने किस तरीके से निकाला है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब मैंने ये किया तो अब मेरे पास सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। मैं इसको जरा लिख लूं आपके लिए ताकि आपको ये फिर इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो रिवाइज कर। तो जो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो है वो किस तरीके से निकला मेरे पास, कि मैंने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया है। अब ये मेरे पास बेसिकली सारी की सारी जो फिगर्स हैं वो मेरे पास आ गई हैं इसी शेप के अंदर, जिसमें मुझे ये पता चल रहा है कि ये मेरे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, जो कि आया कैसे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन करके। ये मेरे पास पहले साल का कैश फ्लो है, ये दूसरे साल का कैश फ्लो है, ये थर्ड ईयर का कैश फ्लो है, ये फोर्थ ईयर का कैश फ्लो है। फोर्थ ईयर में एक तो मुझे यहाँ तक पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फोर्थ ईयर के बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या होना है, वो ये होना है कि फोर्थ ईयर में वो वर्किंग कैपिटल जिसमें मैंने पैसे कमिट किए थे, जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो वो कमिटमेंट भी मुझे वापस मिल जाएगी। तो ये 2 लाख रुपए जो है
ये उस वर्किंग कैपिटल के पैसों को वापस करते हुए शो कर रहे हैं कि ये वो पैसे हैं। अब चूंकि ये पैसे मुझे प्रोजेक्ट की लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में आ रहे हैं, यानी कि कुछ पैसे मुझे पहले साल आ रहे हैं, कुछ दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, और चूंकि मुझे ये पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर निकाल लिया है। ये आपको टेबल से भी मिल जाता है, अदरवाइज आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्रेजेंट वैल्यू का जो फैक्टर है उसको निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर 1 रुपए की बात करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट, यानी कि यहाँ पे मेरे पास इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, एन रेज टू पावर एन। अब मुझे अगर एक का मालूम करना है तो यहाँ पे एन जो है वो ना 1 हो जाएगा, अगर मुझे सेकंड ईयर में मालूम करना है तो 2 हो जाएगा, थर्ड ईयर में 4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तो ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। जब मैंने सारे की फिगर निकाल के टोटल किया तो मेरे पास 1137,575 के हिसाब से फिगर आ गई, जो कि ये बता रही है कि ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज है 5 साल के अंदर। ओके, अब मैं अगर इसको दोबारा सम अप करूं तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या निकली। सिचुएशन ये निकली कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, जब मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का फैसला किया, तो मुझे 2 पैसे आउटफ्लो करने थे। क्या आउटफ्लो करने थे? मैंने 8 लाख रुपए का सामान खरीदना था और 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने थे। तो मुझे जो पैसे असल में आउटफ्लो चाहिए थे वो चाहिए थे 10 लाख रुपए। और ये जो पूरे 5 साल की वर्किंग के बाद जो पैसे मुझे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 11,37,575। ओके जी, तो मेरे पास ये डिफरेंस आ गया। मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो की। अब मैंने कैश इनफ्लो को कैश आउटफ्लो से मल्टीप्लाई किया। मैंने सिंपली ये कंपेयर करने की कोशिश की, जो पैसा आ रहा है इनफ्लो वो, और जो पैसा जा रहा है, उन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो मैंने जब इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस किया तो मेरे पास आंसर प्लस की शक्ल में आ गया 137,575, विच इज अल्टीमेटली रिप्रेजेंटिंग कि मेरे पास आने वाला पैसा ज्यादा है और जाने वाला पैसा कम है। दिस इज द बेसिक लॉजिक। इसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वर्थ में इस तरीके से कहते हैं कि क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, देयरफॉर प्रोजेक्ट इज फीजिबल एट द रेट ऑफ 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये जो हमारा एनपीवी है ये पॉजिटिव हो गया है। अब यहीं से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट चलाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है कि अब चूंकि एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि एनपीवी, ये जो प्रोजेक्ट है इसको 15% पे ये बेसिकली ये जो 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये क्या है? इट्स अ मिनिमम वैल्यू, इट्स अ मिनिमम रेट, मार्जिनल अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूँ कि 15% के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट है ये फीजेबल है क्योंकि ये पॉजिटिव है। अच्छा, लेकिन अगर ये 137,577 के बजाय अगर ये सिर्फ 1,000 पॉजिटिव होता, इसका भी मतलब था कि ये पॉजिटिव है और प्रोजेक्ट फीजेबल हो जाना चाहिए था। तो इस 15% का मतलब क्या है? 15% का बेसिकली मतलब ये है कि 15% इज द मिनिमम लेवल, जो कि 15% है, और 15% पे ये प्रोजेक्ट फीजेबल है। अब हमारा अगला सवाल बेसिकली ये है कि ये प्रोजेक्ट अगर 15% पे फीजेबल है, इसका मतलब है कि दिस प्रोजेक्ट इज अर्निंग मोर देन 15%। तो मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि असल में ये प्रोजेक्ट कितना अर्न कर रहा है। मेरा अगेन मैं आप दोबारा अपने पॉइंट को रिपीट करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चूंकि एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब यह है कि 15% पे ये प्रोजेक्ट 15% से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। लेकिन कितना ज्यादा? 15%, 16%, 18%, 20%, वी डोंट नो। ये मालूम करने का तरीकाकार है आईआरआर। आईआरआर में हम वो रेट मालूम करते हैं जो प्रोजेक्ट असल में अर्न कर रहा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट अर्न इस तरीके से मुझे पता चलेगा। ये अगेन मैं अगर उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट करूं और मेरी बात अगर आप गौर से सुने, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 137,575 पॉजिटिव प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि वो 15% से ज्यादा अर्न कर रहा है। अगर ये वैल्यू 137,000 के बजाय सिर्फ 37,000 होती, तब भी मैं कहता कि ज्यादा अर्न कर रहा है क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव था। अगर ये 37,000 के बजाय सिर्फ 7,000 पॉजिटिव होती, तब भी मैं कहता ये ज्यादा अर्न कर रहा है। ठीक है, अगर ये 37,500 पॉजिटिव की बजाय 7,500 नेगेटिव होती, तब मैं कहता कि ये रेट से कम अर्न कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है एक्चुअल अर्निंग मुझे कब पता चलेगी? जब मेरे पास एनपीवी जीरो आ जाएगा।
सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ IRR, जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि IRR इज द रेट ऑफ रिटर्न at which NPV becomes zero, at which present worth becomes zero। या इसी को डिफाइन करने का दूसरा तरीका ये है कि IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न विच अ फर्म इज एक्चुअली अर्निंग। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे चलाते हैं, क्योंकि मुझे एक ऐसी फिगर चाहिए जहां पे एनपीवी जीरो हो जाए। तो अब मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे एक हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करने की कोशिश की और मैंने कहा कि अच्छा 15% पे जब मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वर्थ निकाली तो मेरे पास फिगर क्या आई, 1137 जो मैं निकाल चुका हूँ। मैंने जब इसको माइनस किया तो मेरे पास एनपीवी आ गई 137,575। ठीक है, इसका मतलब है मैं अगर यहाँ पे आप लोगों के लिए एक लाइन लगाने की कोशिश करूं इस तरीके से और मैं आपसे ये कहूं कि 15% के ऊपर ये जो मेरा एनपीवी है ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 137 के करीब करीब आ रहा है। और अगली फिगर मैंने मालूम की फिर 22% के ऊपर। जब मैंने 22% के ऊपर एनपीवी निकालने की कोशिश की तो मेरे पास अब जो वैल्यू आई वो माइनस की शक्ल में आई, जो कि कितनी है कि -15,909। ओके, और यहाँ पे ये फिगर थी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब है कि ये फर्म 15% से ज्यादा कमा रही है, इसका मतलब है इसने यहाँ कहीं मूव करना है। लेकिन माइनस का मतलब है कि 22 से कम अर्न कर रही है, इसका मतलब है इसने यहाँ पे कहीं मूव करना है। तो इसने कहाँ तक जाना है, इसने एक ऐसे पॉइंट तक जाना है जहाँ पे ये फिगर जीरो हो जाए और इसके नीचे जो IRR आ रहा होगा, जो रेट आ रहा होगा, उसको मैं कहूंगा कि दैट इज IRR, यानी कि ये वो वैल्यू होगी जो कि असल में फर्म अर्न कर रही है। अब इसमें तरीकेकार बेसिकली क्या है, तरीकेकार वही है कि मुझे या तो यहाँ से यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ से यहाँ पे जाना है, किसी भी जगह से मैं चला जाऊँ। मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्ट किया 22% से इधर जाना। अब आप गौर कर लें, अब आप किसी जगह से भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया है 22% से, क्योंकि 22% से इधर जाना है, इसका मतलब है मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा बिकॉज आई एम गोइंग बैक। तो 22 माइनस, मैंने यहां से कहां तक जाना है, मैंने यहां से यहां तक जाना है। तो अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो दिस इज -15,990 टू जीरो। तो जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 15,999। ठीक हो गया, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया। ठीक हो गया, ये कौन सा डिस्टेंस आ गया, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया। अच्छा, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे मजीद चलाऊं, सेकंड केस में क्या हुआ, अब मुझे ये भी देखना है कि इसका इसके साथ डिस्टेंस कितना है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 15,990 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 137,575। डिस्टेंस कैन नेवर बी इन इन माइनस, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा है, इसलिए हम इन दोनों को जमा कर देंगे। तो जमा किया तो ये मेरे पास फिगर आ गई 153,575। ओके जी, यानी कि मैंने किया क्या, मैंने सिंपली ये किया है कि दिस डिवाइडेड बाय टोटल फिगर मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डिफरेंस विच इज 15,000, 15% एंड 22%, दैट इज 7%। ये हो गया जी मेरे पास। अब अगेन 22% माइनस, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो ये मेरे पास फिगर आ गई, इन दोनों को माइनस किया, दिस इज माई IRR। दिस IRR इज व्हाट, दिस IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट्स मीन दिस इज द रेट विच दिस प्रोजेक्ट इज एक्चुअली अर्निंग। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर पूछा जाए लिबर्टी से कि जी आप आपका एक्चुअल ये जो क्लासिक अगर आप अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न होना कितना है, तो आप कहेंगे कि जी ऑल्दो हमारा मिनिमम लेवल 15% है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमें उम्मीद है कि हमें 21.27% रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IRR एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये बड़ा एक सिंपल सा सवाल था। तो आप अगर अगले कुछ देखेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि इसको हम क्या क्या इसके अंदर चेंजेस लाने की पोजीशन में होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।